السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ کیئر سے آپ کا میزبان طاہر یعقوب۔ آج ہم بات کریں گے جنرل ویکنس اور تھکاوٹ کیا ہے۔ پورے جسم کی کمزوری پورے جسم کو متاثر کرتی ہے۔ کمزوری کی اصطلاح سے مراد جسمانی کمزوری یا توانائی کی کمی ہے۔ کمزوری سے مراد پٹھوں کی طاقت میں کمی ہے۔ تھکاوٹ ایک تھکاوٹ ہے جو یا تو مشقت سے یا اس سے وابستہ ہو سکتی ہے۔ کمزوری اور تھکاوٹ کی شکایات کا تب ہی پتہ چلے گا جب آپ بلڈ کے ٹیسٹ کروائیں گے۔ کمزوری کے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، یعنی کمزوری کئی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے آج ہم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ جب بھی آپ کمزوری فیل کریں تو اس وقت آپ کو کون سے ٹیسٹ کروانے ہوں گے، تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کی کمزوری ایک روٹین کی کمزوری ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے کمزوری ہو رہی ہے۔ پتہ تب ہی چلے گا جب آپ اپنے بلڈ کے ٹیسٹ کروائیں گے۔ اتنی دیر تک نہیں پتہ چل سکتا جتنی دیر تک آپ اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتے۔ ویسے تو ہم اندازے سے کہہ سکتے ہیں کہ جسمانی کمزوری ہے، اعصابی کمزوری ہے، تو یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر خون کی کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی کمی ہو سکتی ہے، یعنی کمزوری ہو سکتی ہے۔ اب کمزوری ہونے کی بے شمار وجوہات ہیں۔ کھانے پینے کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ خوراک کی کمی، خوراک میں وٹامن کی کمی اور ٹائم سے کھانا نہ کھانے، جس کی وجہ سے وٹامن B12، وٹامن ڈی کی کمی، نیند کے مسائل، نیند کی کمی، دائمی تھکاوٹ، سنڈروم، انفیکشن، خون کی بیماریاں، فالج، پٹھوں کی بیماریاں، عضلاتی ڈسٹروفی، اعصابی بیماریاں جسے ایک سے زیادہ سکلیروسس اور پارکنسن کی بیماری، میٹابولک امراض جیسے ہائپو تھائرائیڈزم، ذہنی صحت کے حالات جیسی بیماریاں، ڈپریشن، کینسر، قابل اعتماد ذریعہ، پھیپھڑوں کی بیماری یعنی سانس کی بیماری، دائمی درد، ادویات کے اثرات کمزوری پیدا کر سکتی ہیں۔ عمر کے حساب سے بھی کمزوری ہو سکتی ہے۔ زیادہ عمر کے افراد، خواتین خاص کر، اس میں زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ خاص کر پریگنینسی کے دوران سانس کی بیماریاں جس طرح TB، پرانی کھانسی، دمہ اور دل کی بیماریاں اور جوڑوں کے درد کی بیماریاں، پٹھوں کی کمزوری، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے کمزوری ہونا، آئرن کی کمی کی وجہ سے کمزوری ہونا، اس طرح بہت سے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے کمزوری ہو سکتی ہے۔ چوٹ کی صورت میں بلڈ کا ضیاع ہونا، بخار کی صورت میں دانتوں اور معدہ کی تکلیف میں بھی کمزوری ہو سکتی ہے، یعنی جب آپ کے دانت ہی کام نہیں کر رہے تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بھی کمی ہو سکتی ہے۔ معدے کی تکلیف کی وجہ سے بھی کمزوری ہو سکتی ہے، کیونکہ معدہ سب سے پہلے پروسیس ڈائٹ کا وہی کرتا ہے، یعنی جس حصے میں اس نے خوراک بھیجنی ہوتی ہے پروسیس کر کے وہ آگے بھیجتا ہے۔ جب آپ کا معدہ ہی خراب ہے تو وہ پروسیس کیسے کرے گا؟ اس وجہ سے کمزوری ہو سکتی ہے۔ بچپن کی کمزوری یعنی چھوٹے بچوں میں کمزوری، جسمانی سرگرمیوں میں دلچسپی کا فقدان، بے خوابی، افسردہ حالات کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ گھبراہٹ، لرزش، دھڑکن کی بار بار علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے۔ جب دائمی اسہال یعنی ڈائریا، اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو آپ کو پیچس آتے ہیں تو اس وجہ سے بھی کمزوری ہو سکتی ہے، کیونکہ پانی کا کافی زیادہ لاس ہو چکا ہوتا ہے۔ آنتوں کی انفیکشن کی سوزش اس وجہ سے بھی کمزوری ہو جاتی ہے۔ بالوں میں کنگھی، سیڑھیاں چڑھنا، گھر کے کام کرنا، اس میں کسی وجہ سے بھی کمزوری ہو، اس طرح مختلف بیماریوں کی وجہ سے کمزور ہونا۔ اس طرح جب ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر تشخیص کر کے بتائے گا کہ آپ کو کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں۔ یعنی اگر ہم جنرل ویکنس کی بات کریں تو ہمیں بہت سی وجوہات، بہت سی علامات، بہت سے فیکٹر
मिलती हैं, जिसकी वजह से कमज़ोरी हो सकती है। यानी अगर हम खाने पीने में एक प्रॉपर डाइट का इस्तेमाल नहीं करते, पानी की कमी, दूध की कमी, विटामिन की कमी, इस वजह से भी कमज़ोरी हो सकती है। कुछ ऐसी कमज़ोरी होती है जो बीमारियों की वजह से भी हो सकती है। इस वजह से हमें चाहिए कि जब भी हमें कमज़ोरी का एहसास लगे तो हमें सबसे पहले अपने रूटीन के टेस्ट करवाएं या डॉक्टर से जाके अपनी तशख़ीस करवाएं, ताकि पता चल सके कि आपको कोई क्रोनिक बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। बुखार की कैफियत, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम हो जाए तब भी कमज़ोरी हो सकती है। पुराना सर दर्द, हड्डियों की कमज़ोरी यानी कैल्शियम का पूरा ना होना। कैल्शियम की वजह से हड्डियां बनती हैं, अगर कैल्शियम कम होगा तो हड्डियों की कमज़ोरी भी हो सकती है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपने बेसिक टेस्ट लाजमी करवाएं, ताकि साथ साथ हमारी सेहत का पता चलता रहे कि हमारे जिस्म में कमज़ोरी है तो किस वजह से है। वो वजह अगर हम तलाश कर लेते हैं तो हम एक बीमारी से बच सकते हैं, यानी अपनी कमज़ोरी से बच सकते हैं। थकावट, यानी थकावट कमज़ोरी सेम है, यानी हमारा जिस्म सारा दिन सोया सोया थका थका रहता है। अक्सर पेशेंट ये शिकायत करते हैं जब हम रात को या दिन को सोते हैं तो हमारा जिस्म एक साइड का या दोनों साइडों का सो रहा होता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में किसी बीमारी या किसी विटामिन की कमी की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर खुराक ना होने की वजह से हमारे मसल कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल का सून होना देखा गया है। इस वजह से जब भी हमें इस तरह की कंप्लेन आती है कमज़ोरी की, तो हमें चाहिए कि हम अपने डॉक्टर से एक प्रॉपर तशख़ीस करवा कर अपने मेडिकल चेकअप यानी अपने लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएं, ताकि पता चल सके कि हमारे जिस्म में कमज़ोरी है तो कौन सी कमज़ोरी है। यानी कमज़ोरी की बहुत सी वजूहात हैं, मैंने ये चंद वजूहात बताई, इससे ज़्यादा वजूहात भी हो सकती हैं। अगर आप ये चंद वजूहात भी देख लें तो आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिल सकती हैं, यानी कमज़ोरी के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा पता चल सकता है। अब हम पैथोलॉजी टेस्ट के बारे में बताते हैं कि जब भी आपको इस तरह की कैफियत हो यानी कमज़ोरी फील करें तो आपको बेसिक टेस्ट करवाने होंगे। ये बेसिक टेस्ट क्या हैं? ब्लड के टेस्ट हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड पिक्चर। सबसे पहले हमें अपना या मरीज़ का बेसिक टेस्ट करवाएं। इसमें खून की कमी लेवल, HB लेवल में पता चल सकता है कि जिस्म में खून कितने % है। यानी हम अपना हेमोग्लोबिन का टेस्ट करवाएंगे। हेमोग्लोबिन में पता चलेगा कि हमारी बॉडी में जो खून का लेवल है वो नॉर्मल सतह तक है या नॉर्मल सतह से कम है। यानी जो मेल में 12 से 16 तक होती है और फीमेल में 10 से 14 तक होती है। अगर यानी ये इससे कम है यानी खून की कमी है, तो इस वजह से भी हमारे जिस्म में दर्द का एहसास होना, कमज़ोरी, थकावट का होना पाया जाता है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपना कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाएं। इसमें खून के और सेल भी होते हैं, वाइट सेल भी होते हैं, रेड सेल भी होते हैं। इसमें अगर कमी या पेशी या ज़्यादती हो जाए तब भी कमज़ोरी हो जाती है। मिसाल के तौर पर इसमें WBC या प्लेलेट कम हो जाते हैं, ख़ासकर मलेरिया बुखार, टाइफाइड बुखार या डेंगू बुखार में। तो इस वजह से हमारे जिस्म में वीकनेस हो सकती थी। इस वजह से हमें तभी पता चलेगा जब हम अपने ब्लड टेस्ट यानी वाइट सेल चेक करवाएंगे तो वो कम होंगे। इस वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारे जिस्म में कमज़ोरी है तो इस सेल की वजह से है। इस तरह हम उस सेल को बेहतर करने के लिए मेडिसिन या अपनी डाइट बेहतर कर सकते हैं, ताकि वो बीमारी ख़त्म हो जाए। कैल्शियम, खून का ये भी एक कैल्शियम लेवल टेस्ट है। ये ख़ासकर हड्डियों में बनता है। कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से भी कमज़ोरी होती है, क्योंकि कैल्शियम अक्सर विटामिन यानी दूध वगैरह में और सब्जियों में, फलों में इसकी मिकदार मिलती है। अगर ये हम कम लेना शुरू कर दें तो इस वजह से भी कैल्शियम लेवल कम होने से खून की कमी हो सकती है, यानी कमज़ोरी हो सकती है। इसी तरह कुछ बीमारियों में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी वीकनेस हो सकती है। इस तरह जब हम ये ब्लड का टेस्ट करवाएंगे तो हमें पता चलेगा इसकी नॉर्मल वैल्यू से ऊपर है यानी कम है या नॉर्मल वैल्यू तक है। इसी तरह मैग्नीशियम भी पट्ठों की
कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। ब्लड लेवल में मैग्नीशियम की मिकदार अगर कम है तो बी कमज़ोरी यानी जिस्म में थका यानी थकावट होना शुरू हो जाती है। इस तरह हमें अपने खून का मैग्नीशियम लेवल भी टेस्ट करवाना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटाशियम बाइकार्बोनेट, इस तरह सोडियम पोटाशियम यानी हमारे जिस्म में बैलेंस करने के लिए पानी की मिकदार को नमकियात के लिए ये टेस्ट बड़ा अहम होता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे किडनी की बीमारियां, इसमें ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, यानी पोटाशियम लेवल ज़्यादा होता है, सोडियम कम हो जाता है। अगर डायरिया के पेशेंट हैं तो ख़ास कर ये सोडियम कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये टेस्ट करवाने से पता चलेगा कि हमारे नमकियात कम होने से तो कमज़ोरी नहीं हो रही। ये तभी पता चलेगा कि जब आप अपना सोडियम पोटाशियम टेस्ट करवाएंगे। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, इसमें भी काफ़ी हद तक पता चल सकता है कि हमारे जिगर सही काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि जिगर के ऊपर अगर चर्बी या जिगर में इन्फेक्शन हो जाए तो जिगर अपना काम नहीं करता, जिसकी वजह से खून की कमी भी हो सकती है। यानी जो लीवर है वो अपना काम जब नहीं करेगा तो ब्लड जो है ना, वो जिगर ब्लड बनाता है तो ब्लड वो सही नहीं बनाएगा, इस तरह वो खून की कमी या इन्फेक्शन हो सकती है, यानी हमारा जिगर मुतासर हो सकता है। इस तरह जब भी हमें वीकनेस का अंदेशा हो तो हमें LFT टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। विटामिन B12 एक विटामिन है जिसकी कमी की वजह से हमारे जिस्म में कमज़ोरी का एहसास होना, जिस्म थका होना पाया जाता है। इस तरह हम अपने खून में B12 टेस्ट करवाएं ताकि पता चले कि इस विटामिन की कमी की वजह से तो हमारे जिस्म में कमज़ोरी नहीं है। विटामिन डी भी एक हड्डियों का टेस्ट है, जिसमें हड्डियों की मिकदार अगर कम हो जाए तो तब भी हमारे जिस्म में कमज़ोरी होती है, क्योंकि जिस्म में हड्डियाँ होती हैं। अगर विटामिन डी लेवल कम हो जाए तो भी जिस्म में दर्द थकावट होना शुरू हो जाती है। आयरन और TIBC यानी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, यानी टोटल आयरन और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, यानी ये दो टेस्ट हैं आयरन के, यानी खून में फुलाद की कमी। अगर खून में फुलाद की कमी हो जाए तो तब भी हमारे जिस्म में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। इस तरह हमारे जिस्म में खून यानी फुलाद का भी एक हद तक होना यानी नॉर्मल हद तक होना ज़रूरी है। इस वजह से जब भी हमें कमज़ोरी का सामना हो तो हमें आयरन और TIBC टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। यूरिन कंप्लीट यानी यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन भी एक अहम टेस्ट है, जिसमें पता चल सकता है कि हमारे बॉडी यानी हमारे यूरिनरी सिस्टम में कोई ख़राबी तो नहीं है, यानी समटाइम UIT इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारी बन सकती है। बीमारी बनने की वजह से वो जिस्म में सराहियत भी कर सकती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। तो ये एक रूटीन का टेस्ट है, ये भी हमें लाजमी करवाना चाहिए। TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट, यानी जब हमारे थायराइड फंक्शन टेस्ट अब नॉर्मल हो जाते हैं तो वो हमारे जिस्म पे असरअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। इस तरह जब भी हमें कमज़ोरी का एहसास हो या डॉक्टर हमें रिकमेंड करे कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमें अपने थायराइड फंक्शन के टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए। हेपेटाइटिस B और C, ये जिगर के दो टेस्ट हैं, यानी एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। जब भी हमें इसी तरह की शिकायत मिले कि हमारा जिस्म कमज़ोर हो रहा, हमें सुस्ती हो रही है, हमें नींद सही नहीं आ रही, हमारा जिगर खून नहीं बना रहा, तो हमें चाहिए कि हम अपने बेसिक टेस्ट दो वायरल टेस्ट हेपेटाइटिस B और C लाजमी करवाएं, ताकि पता चल सके कि हमारे ये वायरस में कोई पॉजिटिव तो नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो हमें चाहिए कि हम इसका ट्रीटमेंट लाजमी करवाएं। RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, ये दो टेस्ट होते हैं गुर्दों के। ये भी अहम है कि हमारी बॉडी में गुर्दे सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यानी जब सम टाइम ये होता है कि हमारे गुर्दे ख़राब होने की वजह से हमारे जिस्म में वीकनेस होती है, और ऐसे होता देखा गया है। जबकि यूरिया क्रिएटिनिन की नॉर्मल वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो हमारे जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है। इस वजह से हमें तभी पता चलेगा जब हम अपने RFT टेस्ट करवाएंगे। ये बड़े लाजमी टेस्ट, खासकर ऐसे मरीज़ जो शुगर के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से ये मेडिसिन गुर्दों पे अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से गुर्दे इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, यानी वो
ان کا لیول جو ہے نارمل ویلیو سے کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ فیراٹین کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب خون میں فیراٹین کا لیول کم ہو جائے، خاص کر خواتین میں، کیونکہ خواتین کی پرابلم یا تو پریگننسی کے دوران ہوتی ہے یا وہ کھانے پینے میں بے احتیاطی کرتی ہیں، یعنی ٹائم سے نہ کھانا، کم کھانا، جس کی وجہ سے جسم میں فیراٹین کم ہو جاتا ہے۔ جب فیراٹین کم ہو جائے تو تب بھی جسم میں کمزوری کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنا فیراٹین لیول بھی چیک کرواتے رہنا چاہیے۔ ایچ بی الیکٹروفورسز، یہ بھی ایک کینسر کا ٹیسٹ ہے، یعنی ہمارے جسم میں جب خون کی اکثر کمی ہوتی ہے تو اکثر ڈاکٹر اس ٹیسٹ کو کروانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کمی اگر ہوئی ہے تو کس وجہ سے ہوئی۔ ایچ بی الیکٹروفورسز میں پتہ چل سکتا ہے کہ ہماری ایچ بی لیول اگر کم ہو رہی ہے تو اللہ نہ کرے کسی کرونک بیماری کی طرف تو نہیں جا رہا، اس وجہ سے ہمیں یہ اپنے بلڈ کا ٹیسٹ لازمی کرواتے رہنا چاہیے۔ یہ ٹیسٹ اسی وقت آپ کروائیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جسم میں اس طرح کی فیلنگ ہو رہی ہے، یا اپنے ڈاکٹر سے شیئرنگ کر کے، یعنی اپنے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کے ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کے اس حصے میں پرابلم ہے، وہ بیسک ٹیسٹ آپ لازمی کروائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیں۔ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر آپ کو کسی بھی معلومات چاہیے لیب ٹیسٹ کے بارے میں، یا ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے لیے، یا کسی ہاسپٹل کے بارے میں، اگر آپ نے کوئی آپریشن وغیرہ کروانا ہو تو آپ ہم سے معلومات لے سکتے ہیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں جا کے آپ میرا نمبر پہ کال کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔